Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Syed Salman Shafqat, working as Assistant Professor at Department of Chemistry, Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. Uh, this is our second part of this course, having code 4120. Actually, there are two sections in this course. One of them is symmetry and the other one is magnetochemistry. And the first part of this course was delivered by Dr. Adnan, and hope you have a very good understanding of that part of this course. I have gone through all of the lectures delivered by Dr. Adnan, and the presentation of lecture, the slides were well prepared in a very beautiful way and were easy to understand. And I will try to deliver as much I could deliver to you. First of all, we shall go to the key points of our course that we shall discuss. This course is based upon magnetochemistry. Initially, we shall talk about little about history of magnetochemistry, origin of magnetochemistry, some basic terminologies that we must know to understand magnetism. And in the second lecture, we shall talk about theories of magnetism. There are two very famous theories that are used to describe the origin of magnetism in any material. Then we shall discuss states of matter based upon magnetization, and the famous types of materials are categorized into diamagnetism, paramagnetism, ferro-ferri, and antiferromagnetism. And I think so more than 10 lectures will comprised of states of matter. And in based upon these types, there are different applications and phenomena that are linked to these states of matter based upon their magnetization. And then we shall talk about magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility is actually a unit to determine the power of magnetization present in a material. From magnetic susceptibility, we shall derive an expression that is magnetic moment. Somehow, magnetic susceptibility and magnetic moments are similar things. In most of the cases, we can directly determine magnetic susceptibility and then we convert into magnetic moment. The symbol for magnetic susceptibility is psi and for magnetic moment is mu, that we shall discuss, I think so, after 10th or 11th lecture about magnetic susceptibility and magnetic moment. And further, we shall study two methods, that is Faraday's and Gauss methods. These are actually two balances that are used to record magnetic susceptibility of a material. Uh, I will little bit explain about these methods. Usually, a paramagnetic substance is attracted towards magnetic field, and diamagnetic material is repelled by a magnetic field. So, in these two balances or methods, we determine the weight of a material in the presence or absence of magnetic field, and if we observe any difference in weight of the materials, then we are able to derive an expression for magnetic susceptibility and magnetic moment of a material. And side by side, we shall study effect of temperature on magnetic properties of above discussed materials, and at the end we shall talk about a very famous and applicable technique, that is EPR,
and its full name is electron spin resonance spectroscopy. And our last lecture will be about magnetic moments of lanthanides. And I think so there will be total 25 lectures, maybe 23, 24 or 25 lectures in which we shall discuss all these topics. Here are few books that you can consult for your better understanding. Most of the material that I will use to prepare these lectures I will share with you in Google Classroom, and the students who are taking these lectures other than a township campus, they can request to their resource person to provide you the PDF of these lectures. Usually, the main teacher, that is Dr. Muhammad Aslam, will share YouTube link of this lecture before the start of week to all the resource persons, those who are teaching these courses in different campuses of our university. But sometimes there is a little bit delay in the PDF of this lecture, but you can request anytime for PDF lecture, so that will be easy for you to take PDF copy of the lecture, and on your laptop or computer you can listen and watch this lecture. Initially, we shall talk about history of magnetism. The first known magnets were naturally occurring lodestones. This is a type of iron ore, and it's commonly known as magnetite, and its formula is Fe3O4. People of ancient Greece and China discovered that a lot a lodestone would always align itself in a longitudinal direction if it was allowed to rotate freely. This property ऑफ लोडस्टोन मीन्स कि जो जब इसको हम फ्रीली हैंग करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो चाइना के लोग थे, उन्होंने 2000 साल पहले कंपास डेवलप की, जो कि मैग्नेट की फर्स्ट एप्लीकेशन भी कहलाई जाती है। इस कंपास की मदद से वो डायरेक्शन जो है उसको वो फाइंड करते थे, और स्टिल ये जो कंपासेस हैं, ये स्पेशली जो शिप्स हैं, जो बहरी जहाज़ हैं, उनमें डायरेक्शन का तयन करने के लिए यूज़ की जाती रही हैं। आजकल तो खैर स्मार्ट डिवाइसेस का दौर है, जीपीएस अवेलेबल हैं, सेल फोन्स अवेलेबल हैं। तो पुराने वक्तों में जब ऐसा कोई इंटरनेट का या नेटवर्किंग का सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो उस वक़्त डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन के लिए कंपास यूज़ की जाती है। और आप कंपास जो है समटाइम्स जाए नमाज जो होते हैं उनके ऊपर भी छोटी सी कंपास लगी होती है। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे गेस्ट चले जाते हैं कि जहाँ पे हमें काबा की डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो जाए नमाज के ऊपर छोटी सी एक डायल बना होता है घड़ी की तरह, उसके अंदर कंपास लगी होती है, उससे भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने सेल फोन के गूगल प्ले स्टोर से भी कंपास को डाउनलोड करके तो आप अपने सेल फोन से डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंपास एक्चुअली फर्स्ट डिस्कवरी थी किसी भी मैग्नेटिक डिवाइस की। In 1263, Perry de Maricourt mapped the magnetic field of lodestone। ये मैट्रिक एफएससी में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आपने एक बार मैग्नेट को पेज के ऊपर रख के और कंपास उसके साथ साथ आप एक तरफ से घुमाते गए थे, तो बड़ा खूबसूरत सा उसके गिर्द जो है वो लेड पेंसिल से एक मैप बन जाता है। और इसी तरह उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो अर्थ है वो भी एक
मैग्नेट है और मैग्नेट के दो पोल भी उसने डिस्कवर किए जिनको हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। In 16th, William Gilbert, a physician of Queen Elizabeth, concluded that Earth itself is a giant magnet. In 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted discovered an electric current flowing through a wire can cause a compass needle to deflect, showing that magnetism and electricity were related to each other. तो ये बेसिकली स्टार्ट की फाइंडिंग्स थी जिनकी बुनियाद पे मॉडर्न मैग्नेटोकेमिस्ट्री जो है वो बेस करती है। ये चंद एक बुनियादी बातें हिस्ट्री की बताना इसलिए ज़रूरी थी कि आज जो हम मैग्नेटोकेमिस्ट्री की बेस पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं या ईपीआर जो है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनका आगाज़ जो है वो 16th, 17th और 18th सेंचुरी में हो चुका था। Now we shall come towards a definition of magnetochemistry. What is magnetochemistry? Magnetochemistry is the study of magnetic properties of materials. Magnetic properties do not mean whether a material will make a good bar magnet, but whether it will be attracted or repelled by a magnet. तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटोकेमिस्ट्री में हम ये नहीं सिर्फ स्टडी करते कि कोई मटेरियल एक अच्छा मैग्नेट बन सकता है या नहीं बन सकता, बल्कि किसी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना या रिपेल होना, ये दोनों चीज़ें भी मैग्नेटोकेमिस्ट्री की स्टडी के अंदर ही आती हैं। Magnetism arises from moving charges such as an electric current in a coil of wire. तो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो मूविंग चार्जेस है। Magnetic properties also arise from the spin and orbital angular momentum of electrons contained in a compound, atom, ion, or molecule. In a material which does not have a current present, there are still magnetic interactions. Atoms are made up of charged particles, that is, protons and electrons, which are moving constantly. तो ये स्टार्ट की जो स्टडीज़ थी उनसे ये फाइंडिंग्स की गई कि एक तो ये है कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी किसी तार में से, किसी कॉपर में से या और किसी कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह अगर किसी मटेरियल में से करंट नहीं पास कर रहा तो फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिक इंटरेक्शंस पाई जा सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो मटेरियल्स जिनमें करंट नहीं पास कर रहा उनमें मैग्नेटिक इंटरेक्शंस के जो ओरिजिन हैं या सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। द प्रोसेसेस which create magnetic field in an atom are nuclear spin and electric spin. लास्ट स्लाइड पे हमने बात की थी कि कोई भी मटेरियल है तो वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में आते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियर स्पिन जो है ये ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर ऑब्जर्व होगी जिनकी अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ऑड नंबर में, जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी दो स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है वो आप डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि वो प्लस हाफ से रिप्रेजेंट की जाती है और इसको अल्फा भी कहा जाता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो माइनस हाफ से रिप्रेजेंट की जाती है और उसको बीटा भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप एक सर्कल में जिनमें दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट है ये दो तरह से है।
एक तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है और दूसरा वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। एग्जैक्टली सिमिलरली जो अर्थ है इसकी भी रोटेशन सन के अराउंड टू वेज है। एक तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं, और दूसरा अर्थ जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मूवमेंट करती है। तो दो तरह की मूवमेंट होगी, एक स्पिन और दूसरी मूवमेंट। स्पिन की वजह से डे एंड नाइट की अल्ट्रेशन है, और जो ऑर्बिटल मूवमेंट है उसकी वजह से सीजन की चेंजेस आती हैं। Each of these magnetic field interact with one another and with external applied magnetic field. However, some of these interactions are strong and others are negligible. Measurement of interaction of nuclear spin are used to analyze compound in nuclear magnetic resonance spectroscopy and electron spin resonance spectroscopy. अब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, हमने स्टार्ट में बात की कि किसी भी मटेरियल के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इन प्रोटॉन्स की आपस में इंटरेक्शन भी होती है, इसी तरह जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में भी इंटरेक्शन है, और इसके साथ साथ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इंटरेक्शन भी है। फिर एक एटम के ये जो चार्ज पार्टिकल हैं इनकी दूसरे एटम के चार्ज पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्शन है। फिर जब हम किसी मटेरियल को जो कि बिलियंस या ट्रिलियन एटम्स का बना हुआ है उसको किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अब चार्ज पार्टिकल्स की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन होगी। तो अब ये इंटरेक्शन समटाइम्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, तो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समटाइम्स चार्ज पार्टिकल की अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, और वो मटेरियल जो है वो नॉन मैग्नेट या डायमैग्नेट प्रॉपर्टीज शो करता है। ये जो मैंने बात अभी जिक्र की है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद ईच अदर, विद नेबरिंग एटम और विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन सब को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम जब मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे तो उनमें सारी की सारी डिटेल में ये इंटरेक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का जिक्र हो गया, एक एनएमआर और दूसरी ईपीआर। एनएमआर जो है ये मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स और साथ में ट्रांजिशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर की इलूसिडेशन के लिए यूज होती है। एक्चुअली एनएमआर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए हेल्पफुल है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनका डेफिनेट सी बात है एक पार्ट ऑर्गेनिक होता है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। फिर जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो लिगेंड्स अटैच हैं जिस तरह कार्बोनाइल है या ईडीटीए है या इथाइलिन डायमीन है, तो उनमें भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट मौजूद होता है। तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एनएमआर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स की डिटर्मिनेशन के लिए होती है। ईपीआर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करती है, इसकी मदद से हमें किसी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है, और उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटर्मिनेशन में फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में 2-3 लेक्चर्स ईपीआर पे एंड पे मौजूद हैं जिनमें हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक spin of one electron and intrinsic spin of another electron are stronger for very heavy metals such as actinides। तो किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इंटरफेरेंस है वो जो 3D एलिमेंट्स हैं या लेस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं है, मौजूद तो होती हैं लेकिन
इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि वो मालिक्यूल की या मेटल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकें, लेकिन एक्टिनाइड्स में ये इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन है इसको कहा जाता है स्पिन स्पिन कपलिंग। फॉर दीज एलिमेंट्स दिस कपलिंग कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एनर्जी लेवल। अच्छा, अब इसको मैं टच करते जाता हूँ यहाँ पर। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने रसल सेंट्रल कपलिंग पढ़ी है, तो उसमें हमने 3 तरह की इंटरेक्शंस डिस्कस की थी, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन और एल एल इंटरेक्शन और कैपिटल एल और कैपिटल एस इंटरेक्शन। तो अब ये जो लास्ट लाइन है, फॉर दीज एलिमेंट्स दिस कपलिंग कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3 तरह की इंटरेक्शंस होंगी तो स्पीशी के अंदर, मटेरियल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पर एनर्जी लेवल्स की अल्ट्रेशन है। एनर्जी लेवल्स एक्सपेक्टेड से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उनकी एनर्जी भी एक्सपेक्टेड एनर्जी लेवल से कम ज़्यादा हो सकती है। The interaction between electrons' intrinsic spin and its orbital motion is called spin-orbital coupling. Spin-orbit coupling has a significant effect on the energy levels of orbital in many organic compounds. Macroscopic effects such as attraction of a piece of iron to a bar magnet are primarily due to number of unpaired electrons in the compounds and their arrangements. The various possible cases are called magnetic states of मैटर। ये मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जो मटेरियल की हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट में मैंने आपको बताई है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक स्टेट्स ऑफ मैटर है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की बुनियाद पे जो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है। और ये जो एस एस एल एस और कैपिटल एल एस कपलिंग है, इसको पिछली स्लाइड पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पिछले सेमेस्टर का जो रसल सेंटर कपलिंग वाला या स्टेट्स माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो वाला आर्टिकल जो है वो देख सकते हैं। Origin of magnetization: if an electric current, which is a flow of electron, is allowed to flow through a wire coiled around a core, a field is produced which behaves as if it were due to magnet, that is, magnetic field is produced. Now we know that according to classical model of atom, that is Bohr's model, the electrons have two spins, two types of motion. Orbital motion, which is due to motion of an electron around the nucleus, is in an orbit. Orbital motion can be compared to flow of electric current through a coiled wire. The orbital motion, therefore, like an electric current flowing a coiled wire, also produces magnetic field or magnetic moment, which is called orbital magnetic moment or simply orbital moment of electron। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड 2 तरह की मूवमेंट है, एक ऑर्बिटल मूवमेंट है और दूसरी स्पिन मूवमेंट है। अब स्टार्ट वाली लाइन में ये बताया गया कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑर्बिट को हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ऑर्बिट भी एक पाथ है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करें, चाहे वो किसी वायर में फ्लो करें या वो न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में फ्लो करें, उनकी फ्लो की वजह से उनके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देखें, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी ये बिल्कुल इसको उसने कंपेयर किया कि जिस तरह वायर में से करंट गुजरता है तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से करंट पर मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस हो। Now we shall talk about the second motion, that is spin motion, which is due to spinning of electron around its own axis. The spin motion also produces magnetic field or magnetic moment,
which is called spin magnetic moment or simply spin of electron, there are two magnetic moments, that is orbital magnetic moment and spin magnetic moment makes an atom behaves like a small magnet. That is, it is these two magnetic moments which produce magnetic properties in a substance. Thus, we know that when a magnet is placed in the field of another magnet, the magnetic produced by one magnet will interact with that produced by the other. This is an this in other words means that when a substance which behaves as a magnet due to orbital and spin motion of its electron, as we have seen above, is placed between the poles of a magnet, the magnetic field produced by orbital and spin motion of electrons interact with external magnetic field. अच्छा, सिंपली बात ये है कि जो दो तरह की मूवमेंट की हमने बात की, एक ऑर्बिटल मूवमेंट जिसको हमने कंपेयर किया वायर में फ्लो होने वाले करंट से, दूसरी मूवमेंट की हमने बात की जो कि स्पिन की वजह से है। अब ये दोनों मूवमेंट जो है वो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करती हैं, या अगर तो इन दोनों की आपस में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो तो मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं तो मटेरियल जो है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है। अब जब हम ऐसे मटेरियल को कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दो सोर्सेज की वजह से, एक स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, तो अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के दरमियान जब हम इसको रखेंगे तो इसकी उसके साथ इंटरेक्शन दो तरह से हो सकती है, या तो वो उसके साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा या उसके साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तो वो डिक्रीज हो जाएगी। It is interesting to note that when various substances are placed between the poles of magnet, that is in a magnetic field, they do not behave in a similar way, that is they show different behaviors which are known as magnetic behaviors. तो इसका मतलब यही है कि कुछ मटेरियल्स की इंटरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंस्ट्रक्टिव होगी और कुछ की डिस्ट्रक्टिव होगी, और कुछ की जो इंटरफेरेंस है वो कुछ अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से इंटरेक्शंस की बेस पे मटेरियल्स को क्लासीफाई किया गया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। ये जो पांचों क्लासेस हैं इनको डिटेल में हमारे इस कोर्स में डिस्कस किया जाएगा, वन बाय वन इनकी डेफिनेशन, इनकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन और इस बिहेवियर की ओरिजिन क्या है, फिर मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर क्या क्या इफ़ेक्ट है, और उस टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की बुनियाद पे हम इस मटेरियल को किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन तीन क्लासेस में से जो तीन लास्ट वाली तीन क्लासेस हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये रेयर सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं। जो ज़्यादातर मटेरियल्स हैं वो या तो डायमैग्नेटिक होते हैं या फिर पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इन इंटरेक्शंस की बुनियाद पे मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की गई है और उनको वन बाय वन जो है वो इस कोर्स में डिस्कस किया जाएगा। डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली गाइस या फैराडेज बैलेंस के अंदर इनका वेट कम हो जाता है, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनका वेट इंक्रीज हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस में मटेरियल के वेट के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको ग्रेविटी के साथ
और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करके इनिशियली एक रिलेशन डेवलप होता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फर्दर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके कन्वर्ट किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट में। आप किसी भी बुक में या इंटरनेट पे जब आप देखेंगे तो आपको मटेरियल्स की जो मैग्नेटाइजेशन है वो मोस्टली म्यू में दी जाती है। म्यू ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट है और जो डायरेक्टली हमें इंस्ट्रूमेंट से मिलता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। आमतौर पे जो पैरामैग्नेटिज्म है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है और डायमैग्नेटिज्म जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। डायमैग्नेटिज्म ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है सारे के सारे मटेरियल्स की, क्योंकि मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। कोई मटेरियल भले पैरामैग्नेटिज्म हो लेकिन उसके अंदर डायमैग्नेटिज्म ज़रूर पाई जाती होगी। इसलिए जब हमारे पास डायरेक्टली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन आता है तो उसमें से डायमैग्नेटिज्म को थ्रू फार्मूला माइनस करने के बाद हम मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Now we shall come towards some of the terminologies that will be used in our coming lectures. First of all, we describe the principle of magnetism and definition of some terms. Magnetic flux is the number of magnetic field lines, also called magnetic flux density, passing through a closed surface such as a conducting coil. The SI unit of magnetic flux is Weber and its unit is Wb. In derived unit, it is volts second. The flux density of 1 Web per meter square is 1 Tesla for Nikola Tesla. The Weber is named after the German physician Wilhelm Edward Weber, and his date of birth is 1804 and death is in 1891. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है बेसिकली? मैग्नेटिक फ्लक्स ये है कि हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी इस कोर्स में तो उसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है वो एक दूसरे से अलग-अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, आमतौर पे आपने जो अपनी स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी में मैग्नेट देखे होंगे वो दो तरह के देखे होंगे। एक बार मैग्नेट होता है जो एक स्लिट की फॉर्म में होता है और एक यू शेप मैग्नेट आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मुराद ऐसा मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे मुराद ऐसा मैग्नेट है जिसके दोनों पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि अलग-अलग है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी कई किस्म का हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है जिसको करंट दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड बने, या कोई परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। अब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ लाइंस गुजर रही हैं, ठीक हो गया। अब वो लाइंस कितनी स्ट्रांग हैं उनका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर हम मटेरियल अगर ऐसा रखें जो इनके साथ अट्रैक्शन रखता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसके मुतबादल हम ऐसा मटेरियल रखें जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, उस मटेरियल से अवे हो जाएंगी, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। तो अब मटेरियल की प्रेजेंस में एक तो पहले ये है कि कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ, उसमें वैक्यूम है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और दूसरा, जब हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स वैक्यूम में है एग्जैक्टली वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी मटेरियल के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल की अपनी भी खसूसियत है कि वो उन लाइंस को अट्रैक्ट करे या
रिपेल करे। जिस तरह मैं अब ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, तो यूँ समझिए कि मैं वैक्यूम में ही लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे सामने कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं। लेकिन इसी लेक्चर को जब आप लोग सुनेंगे तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की इस लेक्चर के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स को मेरे तरीक़ाकार से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो ज़्यादा लेक्चर ऑब्ज़र्व कर लेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर के तरीक़ाकार से हो सकता है मुकम्मल तौर पे सैटिस्फैक्शन ना हो, तो उनको उस लेक्चर की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अब मेरे लेक्चर के डिलीवर करने के 3 फेजेज़ हो गए। एक, जिस वक़्त मेरे सामने लैपटॉप है, वैक्यूम है, कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब दूसरा, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, लेक्चर तो वही मैं डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो मेरे लेक्चर से किस हद तक गेन करता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये एक्चुअली बार-बार यूज़ होता है इस कोर्स में, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि स्टार्ट में ही इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी। अच्छा, उसके बाद इसके यूनिट्स के बारे में है, ये आप जो है वो खुद से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सब्सटेंस टेम्परेरीली और permanently magnet as by insertion in a magnetic field. All materials respond to a magnetic field. The magnetization of a sample is proportional to H. M is equal to psi H. मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो था कि जो आपने एक्सपीरियंस किया मेरे लेक्चर को। अब उस लेक्चर को सुन लेने के बाद आपने मैग्नेटोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर से किस हद तक अंडरस्टैंडिंग पाई, आपके पास नॉलेज कितना इम्प्रूव हुआ, वो आपने उसको सुना तब तक आपको याद रहा, अगले दिन आपको भूल गया, या आपके ज़हन के अंदर वो मुकम्मल तौर पे महफूज हो गया, बैठ गया। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन, कि मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। पहले तो उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन डेवलप की, जो किसी मटेरियल की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो हर मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब उस इंटरेक्शन के बाद उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर कितना हुआ, वो प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटाइजेशन। अच्छा जी, और भी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक को टच की है, मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरी मैग्नेटाइजेशन। तो फर्दर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो लेक्चर टाइम की ड्यूरेशन की शॉर्टेज की वजह से मैंने उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी तो उनके बारे में हम वन पे वन डिस्कस करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई हैव few questions for you. Why the north side of a magnet is red and south is blue? Second one is, what do you know about magnetic flux? And the last question is, why magnets are always dark in color? तो ये चंद क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसी लेक्चर में से मिले। आप इसके लिए डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज या जो लेक्चर के स्टार्ट में बुक्स दी गई हैं उनमें मैग्नेटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में से आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूँगा, और आपका ये फर्स्ट लेक्चर है मैग्नेटोकेमिस्ट्री का, और मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बेहतर ये होगा कि आप जिस वीक में जिस दिन ये लेक्चर होगा उसी दिन आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। जब आप 2-3 लेक्चर गुजर जाने के बाद किसी तीसरे चौथे पिछले लेक्चर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये पैदा हो जाती है कि फिर मुझे पीछे वाला लेक्चर्स उतनी अच्छी तरह ज़हन में नहीं होता, तो इसलिए समटाइम स्टूडेंट को जवाब देने में मुझे 1 या 2 दिन लग जाते हैं कि मुझे फिर वो लेक्चर दोबारा खोल के देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड हो, वो जिस डेट को ये लेक्चर डिलीवर हो उसी दिन आप इस लेक्चर को जब सुन ही रहे हैं तो साथ साथ आप क्वेश्चंस को
नोट कर लें और मुझे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।